Assalamu alaikum students, this is Javiya Khan, your English teacher. I hope you all are good. So from today, I am taking your online class. Note, kindly mention your name on the first page of your copy. Write down the syllabus on the second page of your copy. In your book, the first chapter is The World in a Wall. Page number 2. Make the title page in your copies. About the author. Gerald Durrell, 1925 to 1995, was an English naturalist, author, and television presenter. He wrote about his life as an animal collector and orthicist. Durrell was taken to zoo when he was young, and he said that this was when his lifelong love of animals began. Basically, ये चैप्टर बेस करता है एनिमल्स पे. जो इस चैप्टर के राइटर हैं, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, उनके बारे में अब हम ज़रा सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो कौन थे, वो कब पैदा हुए थे और वो ख़ुद क्या करते थे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ख़ुद एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, ऑथर थे, यानी कि वो स्टोरीज़ भी लिखते थे, कहानियाँ भी लिखते थे और टेलीविज़न प्रेजेंटर भी थे, यानी कि वो टेलीविज़न पे भी प्रेजेंट होते थे आके. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी अपनी ज़िंदगी में. यूजुअली किस पे लिखी? एनिमल्स पे वो रिसर्च करते थे, उनके बारे में लिखते थे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक दफ़ा जब बहुत यंग थे तो वो ज़ू गए और जब से उनकी ज़िंदगी में एनिमल्स के लिए मोहब्बत पैदा हुई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया एनिमल्स पर रिसर्च करना, उनके बारे में पढ़ना. यहाँ पे जैसे कि ये पिक्चर जो बनी हुई है ये उनकी ख़ुद की पिक्चर है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने एक एनिमल पकड़ा हुआ है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ समरी ऑफ दिस चैप्टर. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. लाइक समरी जो है वो हम चैप्टर को अपने सम अप कर देते हैं तो उसे कहते हैं समरी. तो यू ऑल हैव टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली. सो आई एम स्टार्टिंग आउट द समरी. द स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय हु फाइंड्स अ वॉल नियर हिज होम. ऑन केयरफुली ऑब्जर्विंग द वॉल, it is seen that it is the home to many living creatures, like the geckos and crane flies. Those living creatures were put to work, and they were working very systematically by being divided into day and night workers, and also as the hunters and the hunted. The author, while keenly observing all these processes on the wall, observes a deadly animal and is at once tempted to take it home. The animal is a deadly scorpion. The author also knows well that if his mother comes to know of his, then she will be very angry on him for bringing such a poisonous and deadly creature within the precinct of the house. Even then the author takes the scorpion inside a matchbox and goes home. As soon as he keens the matchbox on the table and sits to have lunch, suddenly Larry goes for a cigarette. Having finished his lunch, he then finds the matchbox on the table and picks it up to light the cigarette. As soon as he does that, the scorpion with its babies grab the chance of escaping and climb on Larry's arm. Panic strikes in the entire house, and chaos is spread in the house. Being Lucrezia happens to be the only stranger in the house, so the dog,
Roger takes him as responsible and bites her on the ankle. This turned ugly in the family, and the author is made to round up all the scorpions. He then leaves them back on the same wall and retires to a hillside with Roger for the rest of the day. यहाँ पे मैंने अपनी इस चैप्टर की समरी रीड आउट कर ली है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ऑथर इसमें अपनी स्टोरी के बारे में लिखते हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक इंसिडेंट उनके साथ पेश आया उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है. चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. कि एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके घर में एक दीवार थी और वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता था. उसने उस दीवार को देखा और उसने उसको नोट करना शुरू किया कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं. लिविंग क्रिएचर्स किसे कहते हैं? जो ज़िंदा रहते हैं, जो सांस ले सकते हैं. बहुत सारे रहते हैं. और ये लिविंग क्रिएचर्स जो है वो अपना वर्क पे भी जाते हैं, यानी कि काम भी करते हैं. काम कैसे करते हैं भाई? कीड़े मकोड़े खाना लेने के लिए जाते हैं, खाना लेकर आते हैं, खाना खाने के लिए निकलते हैं. और ये सारा काम बहुत ही सिस्टमैटिकली हो रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनकी लाइफ में, कोई भी मसले नहीं है उनकी ज़िंदगी में. और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डे वाइज और नाइट वाइज मैनेज करी हुई हैं कि किसको डे का काम करना है, यानी कि किसको रात का काम करना है, दिन का काम करना है. ये सब उन्होंने बांधा हुआ है. कौन चीज़ें, हंटर कहते हैं किसी भी चीज़ को, हंट जो कर रहा होता है यानी कि उसको शिकार जो कर रहा होता है उसको कहते हैं. और कौन लेकर आएगा. ऑथर ने बहुत ज़्यादा, यानी कि जो राइटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया. एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक डेडली एनिमल जो है, यानी कि एक मरा हुआ जो एनिमल है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है. और जो बाकी के एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, उसको उठा के लेके जा रहे हैं. आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ इंसानों में चीज़ नहीं होती. अगर कोई एनिमल भी मर जाता है और अगर हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं तो, और हम वहाँ से हट जाते हैं, तो जो उसके बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द जो रहते होते हैं ना, इंसेक्ट्स हो गए या जो भी एनिमल्स हो गए, वो उसके पास आते हैं. आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ऑब्ज़र्व किया, अगर हम किसी आंट को मार देते हैं या कोई मर जाती है चोटी, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चोटियाँ और जमा हो जाती हैं. ठीक है, थोड़ी देर बाद आप वहाँ जाएंगे तो वो चोटी वहाँ पे मौजूद नहीं होगी. क्या वो चोटियाँ ने उस चोटी को खा लिया? नहीं ना, उसको ले जाती हैं अपने साथ. तो उसने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि जानवरों में भी ऐसी बात है, एनिमल्स भी ऐसा करते हैं. फिर ऑथर जो है उसको एक एनिमल को मैच बॉक्स उसके पास था उसमें बंद करके घर ले आया और अपने टेबल पे बैठ के खाना खाने लग गया. उसके घर में जो उसका भाई था लैरी, उसमें क्या हुआ कि एकदम से वो उठा खाना खाने के बाद और ऐसे ही सडनली ही गोज़ फॉर अ सिगरेट. वो क्या करा, वो सिगरेट पीने के लिए जाने लगा. अब सिगरेट तो माचिस से जलती हैं, उसके लिए उसको मैच बॉक्स की ज़रूरत थी. तो उसने क्या किया कि मैच बॉक्स में जो ऑथर का जो बॉय का मैच बॉक्स था उसने वो उठाया. और जैसे ही उसने वो उठाया सिगरेट जलाने के लिए, तो क्या हुआ कि भाई उसमें जो एनिमल था, जो इंसेक्ट था, वो बाहर निकला और लैरी के हाथ पे चढ़ गया, आर्म पे चढ़ गया. एकदम से घर में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया. विद इट्स बेबीज ग्रैब द चांस ऑफ एस्केपिंग एंड क्लाइम ऑन लैरीज आर्म. जो एनिमल थे उसके बेबीज़ भी थे, तो वो सबको लेके उसके हाथ पे चढ़ गया भागने के लिए ना, क्योंकि एक छोटा सा तो मैच बॉक्स होता है, उसमें वो कैसे आता, फंस गया था वो बेचारा. भागने के लिए वो आर्म पे चढ़ गया, लैरी के हाथ पे चढ़ गया. अब एक घर में एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया. पैनिक किसे कहते हैं? जो अफरा तफरी हो जाती है घर में. पैनिक क्रिएट हो गया और सब जो है चीखों पुकार होने लग गई. और उनके घर में एक स्ट्रेंजर भी था और एक डॉग भी था. तो डॉग ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उसने उसके एंकल पे यानी कि पाँव पे कट किया यानी कि बाइट किया. दिस टर्न अगली द फैमिली एंड द ऑथर इज़ मेड टू राउंड अप ऑल द स्कॉर्पियंस. और ये बहुत ही अजीब सा भयानक सा सीन हुआ और ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवर करने लगे, डर गए. ही then leaves them back on the same wall. और आखिरकार वो जो एनिमल्स थे, जो इंसेक्ट्स थे, उनको ऑथर ने उठाया
और उसी दीवार पे वापस से छोड़ दिया। एडवर्टाइज टू अ हिल साइड विद रॉगर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उस दिन जो है वो अपने डॉग के साथ पूरा दिन गुजारने के लिए एक हिल साइड पे यानी कि एक पहाड़ पे चले गए। अब अगर आप लोग इस चैप्टर को और ब्रीफ में स्टडी करना चाहते हैं तो यू हैव टू रीड योर होल चैप्टर फ्रॉम योर बुक। आपने इस चैप्टर को थॉरली रीड करना है। You have to read this chapter thoroughly from your book, page number 2. I hope you will like this chapter. मुझे यकीन है आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और इसको समझने में, और ये स्टोरी आपको हमेशा याद रहेगी। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। Now moving to the next slide. The next slide is of difficult words. The first word is infinite, the second one is beneath, the third one is polished, fourth, smuggle, unfortunate, population, community, attention, increasingly and rapidly. Infinite का मतलब क्या होता है? लिमिटलेस, यानी कि लातादाद, जिसको हम काउंट ना कर सकें। beneath यानी कि नीचे। पॉलिश्ड, किसी भी चीज़ को हम पॉलिश कर दें। स्मगल, जो गैर कानूनी तरीके से चीज़ें स्मगल मतलब जा रही होती हैं उसको कहते हैं हम स्मगल। अनफॉर्चुनेट, जो हम चीज़ नहीं चाह रहे हो और वो चीज़ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेट। पॉपुलेशन, आबादी को कहते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी किसे कहते हैं? जहाँ पे हम रह रहे हों, जैसे अगर हम किसी फ्लैट्स में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। अटेंशन का तो हमें सबको पता है अटेंशन के मीनिंग क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो जाना। इंक्रीजिंगली यानी कि किसी चीज़ का बढ़ जाना। रैपिडली, बहुत जल्दी से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ वर्ड्स मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज़ रैपिडली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रैपिडली का मतलब होता है मूविंग विथ ग्रेट स्पीड, यानी कि फ़ौरन से। इनफाइनाइट, लिमिटलेस, यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज़ बल्बस, शेप लाइक अ बल्ब। नंबर फोर्थ वन इज़ फोबिया। फोबिया के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बोलते रहते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का ज़्यादा खौफ हो जाना, उसे क्या कहते हैं हम? फोबिया। कॉन्फिटी, स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड पेपर्स। कॉन्फिटी किसे कहते हैं? जो किसी की बर्थडे पार्टीज़ होती है या हम किसी की वेडिंग्स में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो वो एक पॉपर सा फटता है ना, कलर्स फुल, उसके अंदर पेपर्स होते हैं और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा होता है, प्यारा सा लगता है जब हम उसको गोल घुमाते हैं और उसमें से पेपर्स निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्फिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर 1 is I found a cat, fat female, dash in the wall. क्या देखा उसने? स्कॉर्पियन। द नंबर 2 is I completely forget about my exciting new captures. कि वो क्या सबसे ज़्यादा भूल गया था। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे प्रॉपरली, तो आपको समझ आएगा और इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसमें क्या लिखा है? अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स। तो वो अपनी जो न्यू कैप्चर्स थे, यानी कि उसने जो भी पिक्चर्स वगैरह खींची होंगी, उसके बारे में वो स्कॉर्पियंस को देख के बिल्कुल भूल गया था। ही अटर्ड अ रोड ऑफ फाइट। उसने बहुत बड़ी लड़ाई देखी जब लैरी के हाथ पे स्कॉर्पियंस चढ़ गए थे। इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन। बहुत ही कम वक्त है और आपको एजुकेशन और ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत है। द डैश विल किल अ लॉट ऑफ अस, दैट बॉय विल किल अ लॉट ऑफ अस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट सेंटेंसेस। दिस इज योर होमवर्क। नाउ द वर्ड्स इज, नंबर 1 इज पॉपुलेशन, यानी कि आबादी। नंबर 2 इज़ अनफॉर्चुनेट, यानी कि हमारी लाइफ में कोई भी सडन ऐसी चीज़ हो जाना जो हम नहीं चाहते हो। नंबर 3 वर्ड इज़ अटेंशन। नंबर 4 वर्ड इज़ स्मगल, यानी कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ का होना। एंड नंबर 5 वर्ड इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि किसी चीज़ का बढ़ना। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज स्लाइड्स इन योर कॉपीज़,
यानी कि आपको जैसे हम स्कूल में करते थे, सेम एज इट इज़ वी हैव टू राइट दीज ऑल थिंग्स इन आवर कॉपीज. द नंबर 1 is difficult words. The number 2 is words meaning. Third one is fill in the blanks, and the last one is words meaning. As I mentioned in the slides, that note write down on your copies. आपने सारी चीज़ें अपनी कॉपीज़ में सेम एज इट इज़ उसी तरीके से कॉपी करना है जैसे हम स्कूल में करा करते थे. उसी तरीके से टाइटल पेजेस मेंटेन करने हैं जैसे हम स्कूल में करते थे. अगर किसी की भी कोई भी क्वेश्चन है or if you have any kind of queries you can ask me easily. अगर आपको कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, आप मुझसे ईज़िली कांटेक्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स फिर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे सेफ, स्टे होम.